ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮದೇ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ATM ಏನ್ ಕೇಳ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣನವರು ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣನವರು ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. हैं लेटर में, और वो लेटर बहुत अर्जेंट रहता है, आपको आंसर करना होता है. तो आपके ही जीमेल में जाकर आपके ही मेल ओपन करने के लिए गूगल क्या मांगती है? आपसे पासवर्ड मांगती है. आजकल किसी जगह में पासवर्ड नहीं तो काम नहीं बनता. ನಿಮ್ಮದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಹ ಏನು ಕೇಳ್ತದೆ? ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮದೇ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ನೀವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನು? ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಎಟಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವು ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಖುಷಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆನಂದಮಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಯಾತ್ರೆ, ಜಾತ್ರೆ, ಗುಡಿ, ಗುಂಡಾರ, ಒಂದು ಕಡೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರಿಪ್, ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನ್, ಪಿಕ್ನಿಕ್, ಟೂರ್. ಈಗಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾಲದ ಯುವಕರಂತೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತೆ, ದುಶ್ಚಟ ಅಂತೆ, ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್. ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಪುನಃ ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಂತದೆ, ನೀವಿನ್ನು ಒಂದು ತಾಸು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು 10 ಬಾರಿ ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ? ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಹ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸುಲಭವಾದ, ನಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುವಂತಹ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಿವಾನಿ ದೀದಿಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರ್ದಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? OTPನೇ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀವ? ಆದರೆ ದೀದಿಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದೀದಿಜಿಗೆ ಸಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ದೀದಿಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು, ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೀವು ಯಾರು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಎಲ್ಲರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸದಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ತಾನೆ? ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಈಶ್ವರನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ 2 minutes ಸೈಲೆನ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार. ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ರಶ್ಮಿ ಅಕ್ಕನವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶಿವಾನಿ ದೀದಿ
ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಶಿವಾನಿ ದೀದಿ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶಿವಾನಿ ದೀದಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು 110 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯೂಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾವಿದರಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ರಿಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ರೇಡಿಯೋ ಟಿ ವಿ ಶೋಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸಶಕ್ತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ UK, USA, ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಓಬಿರಾಯ್ ಹಾಗೂ ದೀದಿಜಿ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನನ್ನು ಒಂದು ಬುಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೀರೀಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಬುಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವೇಕ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರೀಸ್. ಇದು ನಂಬರ್ 1 ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಂಬರ್ 1 ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಅವರ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ದೀದಿ ಶಿವಾನಿಜಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪುನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 1994ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ 2014ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಎ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಕೆಡ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದಶಕದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸೋಕಾಮಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಲೀಗ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು 2017ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಅಂತ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2019ನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಂತೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಆನರ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಅಂದಿನ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ದೀದಿಜಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆ ಜನತೆಯ ಭಾಗ್ಯ ಅವ್ರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಅಕ್ಕನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಶಬ್ದ ಸುಮನಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಮಾನಸಕ್ಕನವರು, ಸಂಚಾಲಕರು, ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊಸಪೇಟೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಅಕ್ಕನವರು ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಯೋಗಿನಿ BK ಶಿವಾನಿ ದೀದಿ ಅಕ್ಕನವರು. ಅಕ್ಕನವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಅಕ್ಕನವರನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕರ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅವರ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕನಸು ಇವತ್ತು ನನಸಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಶಿವಾನಿ ದೀದಿಯವರ ಆಗಮನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಕನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ. दीदी आपको ಹೊಸಪೇಟೆ परिवार से सभी से बहुत बहुत नम्र स्वागत है, आपका हार्दिक स्वागत है. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ
ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಿಂಗ್ ಅಣ್ಣನವರು, ಯುವಜನ ನಾಯಕರು, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅಣ್ಣನವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ರೂವಾರಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಅಕ್ಕನವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರ ಎ ಬಾಲ್ಡೋಟ ಅಕ್ಕನವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಗುಮಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣನವರು, MD KFIL ಹೊಸಪೇಟೆ. ಅಣ್ಣನವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಗುಮಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕನವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀ ಶುಭಂಕರ್ ಪಾಲ್ ಅಣ್ಣನವರು, ಹೊಸಪೇಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ COO, ಅಣ್ಣನವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜು ಶರಫ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕನವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ವಂಟಗುತಿ IPS SP ಕೊಪ್ಪಳ ಅಕ್ಕನವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಶಿವರಶ್ಮಿ ಅಕ್ಕನವರು ಹಾಗೂ ಯೋಗಿನಿ ಅಕ್ಕನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶ್ರೋತರು ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೈವಿ ಪರಿವಾರದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಥಾಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದನ್ನು ಓದಿದರೆ ಜೀವನ, ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ದೀದೀಜಿಯವ್ರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ. ಅಂದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೀದೀಜಿಯವರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತೆ. ಅಂಶ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. हम सब 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे. सभी साइलेंट हो जाएंगे, सीधा होकर बैठेंगे. सभी सेवाधारी भी बैठ जाएंगे. अपने ध्यान को लेकर आइए यहाँ पर जहाँ हम तिलक लगाते हैं, in the center of the forehead. And visualize yourself a tiny point of light, एक चमकता हुआ सितारा. ये तिलक हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें याद रहे
हम नाम नहीं हैं, ये बॉडी, ये शरीर नहीं है, हम एक रोल और पोजीशन नहीं है, वो सब कुछ हमारा है, लेकिन हम सब कुछ करने वाली शक्ति आत्मा है। तो वो तिलक लगाया जाता है याद रखने के लिए कि मैं आत्मा हूँ। तो विजुअलाइज करें एक बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा सेंटर ऑफ द फोरहेड, एंड जो थॉट्स अभी आप सुनेंगे आप उन्हें अपने मन में रिपीट करिएगा। मैं प्योर डिवाइन आत्मा हूँ, पवित्र शुद्ध आत्मा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ पावरफुल सोल। हर सिचुएशन में, हर एक के साथ मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। मेरा हर कर्म परफेक्ट है। मेरा हर बोल, हर शब्द दूसरों को सुख देता है। आई एम अ डिवाइन सोल। प्योरिटी एंड पावर, ये मेरी पर्सनैलिटी है। ओम शांति, ओम शांति। सारा दिन में हम बहुत काम करते हैं। आजकल तो भागते ही रहते हैं और हम सब कुछ पर मेहनत करते हैं क्योंकि हम सब कुछ को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। काम परफेक्ट, घर परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट करते हुए कभी कभी हम खुद को परफेक्ट बनाना भूल जाते हैं। और इसीलिए आज हम सुबह सुबह इकट्ठे हुए हैं कि खुश कैसे रहना है, हैप्पीनेस कहाँ से है। हम में से किस किस को हैप्पीनेस चाहिए? हाथ उठा। खुशी चाहिए? और अगर हम पूछेंगे क्या मुझे शांति चाहिए, तो उसके लिए भी हाथ उठ जाएगा कि आई नीड पीस ऑल्सो। एंड मुझे प्यार भी चाहिए, आई वॉन्ट लव ऑल्सो। सो इम्पोर्टेंट है अपने आप से पूछना कि इतने सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, और अगर कोई भी पूछता कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो हम कहेंगे खुशी के लिए। वो अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई, तो अब ये आएगी कैसे? तो हमने सोचा खुशी आएगी
उन चीज़ों में जो हम खरीदते हैं। खुशी आएगी उन अचीवमेंट्स में जो हम प्राप्त करते हैं। इसलिए हम मेहनत करते गए और हमने सब कुछ खरीद भी लिया। आज हमारे घर में एवरीथिंग इज देयर जो पैसों से खरीदा जा सकता है। हमने मेहनत की, हम अपने प्रोफेशन में, रोल और पोजीशन में भी बहुत ऊपर चले गए, लेकिन फिर भी कैसे खुशी नहीं आई? उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि हैप्पीनेस उन चीज़ों में नहीं है, वो उन चीज़ों में ही नहीं है। कभी कभी होता है ना कि चाबी पॉकेट में होती है या चश्मा सिर पर होता है और हम हर जगह ढूंढते, किधर गया किधर गया किधर गया। हर एक को पूछते, तुमने देखा मैंने किधर रखा, मैंने किधर रखा। फिर धीरे से कोई आकर बोलेगा, आपके सिर पे है चश्मा। ऐसे हमारी खुशी के साथ भी हुआ। कहाँ ढूंढूं कहाँ ढूंढूं कहाँ ढूंढूं। पहले सब कुछ खरीदा, नहीं मिली। सब कुछ अचीव किया, नहीं मिली। पूरे इंडिया में हॉलिडे पे चले गए, नहीं मिली। फिर सोचा इंडिया से बाहर जाके हॉलिडे पे जाते हैं, शायद वहाँ मिल जाएगी। सब जगह ढूंढा ढूंढा ढूंढा, और एक्चुअली खुशी कहाँ थी? खुशी हमारे हर कर्म में है, खुशी हमारे संस्कारों में है। खुशी चीज़ों में नहीं हो सकती है, कंफर्ट चीज़ों में हो सकता है। एवरीथिंग दैट वी कैन बाय विद मनी कैन गिव अस फिजिकल कंफर्ट, राइट? इट जस्ट वी आर ओनली बाइंग कंफर्ट। हम आराम खरीद रहे हैं। एंड अगर हम देखें तो पिछले 20-30 ईयर्स में हमने कितना कुछ क्रिएट किया, इतना कुछ खरीदा, जिसने हमारी लाइफ को इतना कंफर्टेबल बना दिया है। बना दिया कि नहीं बना दिया? हर चीज़ जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट लास्ट 30-40 ईयर्स की क्रिएशन है। अब क्या हम विजुअलाइज करते हैं एक ऐसी दुनिया जिसमें लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं है, मोबाइल तो दूर की बात है। हम में से कौन कौन था जब लैंडलाइन फ़ोन भी हम नेबर के घर गए थे फ़ोन करने के लिए पहली बार? हाथ उठाओ। सो यू सी वी हैव लिव्ड दैट लाइफ वेयर ये पॉकेट वाला फ़ोन तो छोड़ो, वो घर का एक फ़ोन भी नहीं था। लेकिन आपको पता है तब हम स्ट्रेस वर्ड नहीं यूज़ करते थे। कहीं जाते थे दूसरे शहर, फिर वहाँ से लेटर लिखते थे, आई रीच्ड। फिर वो लेटर 1 वीक लगाता था वहाँ पहुँचने में। फिर वहाँ से वो रिप्लाई लिखते थे यहाँ। और तो भी हमारे अंदर पेशेंस थी बैठकर वेट करने की कि 1 हफ्ते के बाद पता चलेगा कि वो पहुँच गए। अभी तो घर से कोई निकलता है 2 टर्न करते, उसको कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे पहुँचे, फ्लाइट टाइम पर है, निकली, लैंड किए तो बताया क्यों नहीं अभी तक कि लैंड किए, टिक आया क्यों नहीं आपका। सी हाउ इट हैज़ बिकम। So life became comfortable, but my mind became uncomfortable because I was creating all these thoughts. अगर जितनी पेशेंस हमारे अंदर 1 वीक वेट करने की थी, अगर उतनी ही पेशेंस हम फिर से ले आए कि पहुंच गए हैं, भेज देंगे मैसेज, कुछ और काम कर रहे होंगे, तो हमारी आज भी लाइफ उतनी हैप्पी होगी। तो पहले कंफर्ट्स नहीं थे, लेकिन माइंड पावरफुल था। फिर जैसे जैसे हम कंफर्ट्स कमा रहे थे, हम इतना इंगेज्ड हो गए हैं उन सारी चीज़ों के साथ कि हमने अपने माइंड का ध्यान रखना अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं रखा, क्योंकि हमारे पास सारा दिन इतना कुछ है ना करने के लिए। सो वी थॉट ऐसे खाली कौन बैठेगा सुबह सुबह उठकर, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई कैन डू सो मच इन दैट मच टाइम। एंड सो द ओनली लिटिल मिस्टेक दैट वी मेड इन द लास्ट 20-30 ईयर्स, वी टुक केयर ऑफ एवरीथिंग आउटसाइड, but then we made our mind dependent on that everything outside. और कोई भी डिपेंडेंसी पावर होती है या वीकनेस होती है? कोई भी डिपेंडेंसी पावर होती है या वीकनेस होती है? वीकनेस होती है। तो वो माइंड वीक होता गया। अब हमने दोनों चीज़ें करनी है, बाहर भी मेहनत करनी है, बहुत कुछ करना है, पहले से भी ज़्यादा करना है, लेकिन खुद का ध्यान रखते हुए करना है। दूसरों का ध्यान रखना है, लेकिन पहले अपना ध्यान रखना है। जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो एयर होस्टेस एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर ये प्लेन हिला, तूफान आया, ये हिला, तो हर एक के सीट के ऊपर एक ऑक्सीजन मास्क गिरता है।
तो वो एयर होस्टेस क्या बोलती है, किसको लगाना है पहले? क्या बोलती है, किसको लगाना है ऑक्सीजन मास्क पहले? खुद को। अब आप विजुअलाइज करो, आप बीच वाली सीट पर बैठे हो, आपका एक बच्चा इस साइड बैठा है, एक बच्चा इस साइड बैठा है, अभी 3 ऑक्सीजन मास्क गिरेंगे नीचे, किसको लगाएंगे पहले? आप दोनों बच्चों को छोड़ के खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे पहले? लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज ओनली द रूल ऑफ सेफ्टी। क्योंकि जब तक आप उनको लगा रहे होंगे आपका खुद का ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, गॉन। तो ना उनको लगा पाएंगे ना खुद को। इट इज अ रूल ऑफ सेफ्टी, इट इज अ रूल ऑफ प्रोटेक्शन, इट इज अ रूल ऑफ टेकिंग केयर कि अगर दूसरों का ध्यान रखना है, अगर दूसरों के लिए कुछ करना है तो पहले अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे इस 20-30 का, इस 20-30 ईयर्स का रिजल्ट आज ये निकला है कि आज हम सिर्फ स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं आई एम स्ट्रेस्ड, और थोड़े से बड़े बच्चे बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड। ये हमारी लास्ट 20-30 ईयर्स का रिजल्ट अब ये निकला है। क्यों? क्योंकि हम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे थे विदाउट पुटिंग ऑक्सीजन मास्क ऑन द सेल्फ। तो ना खुद ठीक रहे ना उनको ठीक कर सके, क्योंकि हमने सोचा हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रॉमिस अपने आप से, क्या हम हर रोज ऑक्सीजन मास्क अपने पे लगाने के लिए रेडी हैं? रेडी है ना? जैसे ही अपने आप को एम्पावर करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, वो तो अपने आप ऐसे ठीक हो जाएंगे। 6 महीने के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी उनके पास, प्रोवाइडेड हमने वो ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट अपने ऊपर लगाया टू स्ट्रेंथन माई सेल्फ। तो हैप्पीनेस, पीस, लव इज नॉट आउटसाइड। हम हैप्पीनेस को चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, हम प्यार के लिए लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं, लव मी, रिस्पेक्ट मी, ऐसे नहीं। भारत कौन सी संस्कृति है, ऐसी वाली है या ऐसी वाली? भारत कौन सी संस्कृति है, ऐसी वाली है या ऐसी वाली? इतने सब मंदिर हैं, उसमें जो देवी देवताओं की मूर्ति है वो ऐसे खड़े, ऐसे खड़े। अगर वो ऐसे खड़े होते हम मंदिर नहीं जाते। हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो ऐसे खड़े, ऐसे खड़े हैं, मतलब हम वी आर गोइंग देयर टू वर्शिप द पावर ऑफ गिविंग, द डिविनिटी। और इसीलिए देवी देवताओं की मूर्ति में अगर हम देखें तो हाथ देने वाले होते हैं, और इसीलिए उनके पीछे एक वाइट लाइट का सर्कल होता है। इसको बंद करना, ड्रोन को, ड्रोन बंद करना। वाइट लाइट का सर्कल उनके पीछे होता है, ऑरा में आभा मंडल वाइट होता है। इसका मतलब जो जीवन में ऐसा होगा उसकी प्योरिटी का आभा मंडल होगा। और जितना हम ऐसे होते जाएंगे तो आभा मंडल क्या होते जाएगा, वाइट से। इसीलिए फिर हम प्योरिटी से, शांति और खुशी से हम टेंशन, स्ट्रेस और वो सब शब्दों की तरफ चले गए। तो आज सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, ऐसे की बजाय कैसे बनना है, देने वाला। क्या देने वाला? वैसे तो हम सारा दिन ही सबको दे रहे हैं, लेकिन फिर हम फिजिकल चीज़ दे रहे हैं। हमें इमोशनली देने वाला बनना है। आज से शांति चाहिए नहीं, शांति चाहिए नहीं, लेकिन सबको शांति देनी है। कैसे देंगे सबको शांति? प्यार चाहिए नहीं, सबको प्यार देना है। खुशी चाहिए नहीं, सबको खुशी देनी है। और जब हम सबको दे रहे होंगे, सबसे पहले किसको मिलेगी? जब हम सबको दे रहे होंगे सबसे पहले किसको मिलेगी? अच्छा, हमें ये पता है कि सबको देने से पहले हमको मिलेगी, फिर हम ऐसे क्यों खड़े हुए? आप घर जाके आज किसी को एक बार अच्छे से गुस्सा कर दो। हम डांट उसको रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एंगर की इमोशन किसके अंदर क्रिएट होने वाली है? हमारे अंदर। फिर हमारे घर पे वो छोटे छोटे ऑक्सीमीटर है ना, जो कोविड के टाइम लिए थे, उसको दोनों पे लगाना। जिसने गुस्सा किया और जिसको डांटा, किसका पल्स रेट बढ़ा हुआ होगा? किसका बढ़ा हुआ होगा? जिसने डांटा। दैट इज अ प्रूफ कि जो वो एनर्जी को क्रिएट करता है, वो एनर्जी सबसे पहले उसको मिलती है। दूसरे वाले के पास तो चॉइस होती है लेनी है कि नहीं लेनी।
जो हमारे आसपास रहते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, आप उनको डांटो तो थोड़े दिन के बाद उनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप ऑफिस में करके देखो, कहेंगे हाँ, बाहर जाएंगे कहेंगे क्या आज फिर से गुस्सा किया, सामने वाले कहेगा छोड़ ना, अच्छे हैं, गुस्सा ही करते हैं ना, वैसे तो बहुत अच्छे हैं ना, पर वो दोनों चाय पियेंगे आराम से बैठकर, उनके ऊपर वो गुस्से की एनर्जी का कोई असर नहीं हुआ। सो इट इज नॉट लाइक दिस व्हेन वी गेट, इट इज लाइक दिस व्हेन वी गेट। सो वी ओनली हैव टू गिव एन एनर्जी टू अ पर्सन एंड वी विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट इट। अब यही अगर हमने उन्हें डांटने की जगह उनको समझा, उनको समझाया और फॉरगिव कर दिया, क्षमा कर दिया, तो हमने शांति क्रिएट की। वो शांति भी सबसे पहले किसको मिली? वो शांति भी सबसे पहले किसको मिली? मुझे मिली। सो वी डोंट हैव टू गेट पीस, लव एंड हैप्पीनेस, वी हैव टू गिव पीस, लव एंड हैप्पीनेस। एंड हाउ शुड वी गिव इट? बाय डूइंग दैट इन एवरी कर्म। हमारी लाइफ में एक ही चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो परमानेंट है और जो हमारे साथ हमेशा रहेगी। बाकी सब चीज़ें ट्रांजिएंट हैं। ये बॉडी भी देखो, आज ऐसी है और 5 साल के बाद और ऐसी हो जाएगी, और 10 साल के बाद और ऐसी हो जाएगी, और कुछ साल के बाद वो मिट्टी में पड़ी होगी, और वो तो मिट्टी में चली जाएगी। हम कहाँ चले जाएंगे तब? हम कहाँ जाएंगे तब? तो आप सबको पता है हम शरीर छोड़ेंगे एक दिन? सर्टेन? Who all are certain that I will leave the body? सर्टेन? फिर ये भी साथ में सर्टेन होना चाहिए कि जब छोड़ेंगे तो अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, क्या छोड़कर जाएंगे और क्या लेकर जाएंगे। क्योंकि जो लेकर जाएंगे वो परमानेंट है, जो छोड़कर जाएंगे वो टेम्पररी है। जो छोड़कर जाएंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो लेकर जाएंगे वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो परमानेंट है। तो छोड़कर क्या क्या जाएंगे? Now you have to tell this. What will we leave behind when we die? क्या छोड़कर जाएंगे पीछे? बॉडी छोड़कर जाएंगे, और क्या छोड़कर जाएंगे? लोग छोड़कर जाएंगे ना, फैमिली जिनके साथ आज हम इतने ऐसा, उनको हम छोड़कर जाएंगे। इतना सब कुछ जो कमाया, इतना सब कुछ जो कमाया वो छोड़कर जाएंगे। अचीवमेंट्स छोड़कर जाएंगे। यहाँ तक कि एजुकेशन भी छूट जाती है, क्योंकि फिर से नेक्स्ट जन्म में फिर से नर्सरी में ही जाना पड़ता है। अभी आप डबल PhD कर लो, शरीर छोड़ो, फिर से KG में जाके ABCD, फिर से A फॉर एप्पल फिर से स्टार्ट होगा, मतलब वो भी पीछे रह जाएगा। बट देयर इज ओनली वन थिंग दैट विल गो विद अस, आवर कर्म एंड आवर संस्कार। हमारे कर्म और संस्कार साथ में जाएंगे। The soul will leave this costume, enter the womb of a mother. माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करेगी, और कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होगा, और बच्चा पैदा होते ही 2-3 दिन के अंदर पंडित जी जन्म पत्री बना देंगे। हॉरोस्कोप, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हॉरोस्कोप? है ना? ये कब बनी थी? उस टाइम बनी थी जब भी तो नाम भी नहीं मिला था, कोई कर्म भी नहीं किया था अभी, तभी जन्म पत्री बन गई थी। और तभी पंडित जी ने बता दिया था 10 इयर्स में ऐसा होगा, 20 इयर्स में ऐसा होगा, फिर ये डॉक्टर बनेगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर इसकी शादी होगी, फिर इसके 2 बच्चे, सब कुछ बता दिया। बच्चे ने कोई कर्म ही नहीं किया अभी तक। तो वो हॉरोस्कोप किसके आधार से बना था? वो हॉरोस्कोप किसके आधार से बना था? वो बच्चे का हॉरोस्कोप नहीं बन रहा था, वो उस आत्मा का हॉरोस्कोप बन रहा था जो उस कॉस्ट्यूम में आई थी। और वो हॉरोस्कोप बन रहा था उस आधार से जो वो कर्म वो आत्मा करके आई थी। तो हमारे कर्म और हमारे संस्कार सिर्फ इस जीवन को नहीं डिसाइड कर रहे हैं, वो हमारे आगे की डेस्टिनी भी उसी आधार से चलती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हो गई फिर लाइफ में? कर्म एंड संस्कार। इसको यहाँ फिट कर लेना है। कुछ भी हो जाए, there should not be a single error in my कर्म and संस्कार। हो सकता है ना ऐसा? ठीक, डन।
परफेक्ट, अग्रीड। बच्चा जब छोटा पैदा होता है, अभी उसको कुछ सिखाया भी नहीं होता, लेकिन आप देखो कोई बच्चा बहुत स्माइलिंग होता है, कोई बच्चा रोता जल्दी है, कोई बच्चा दूसरे के पास आराम से चला जाता है, कोई बच्चा अपने मम्मी पापा को गोदी को छोड़ता ही नहीं है, कोई बच्चा अपना खिलौना, अपना टॉफ़ी सबको देता है, अंकल आप लो, अंकल अंकल आप लो। हम बोलते हैं नहीं आप खाओ, नहीं आप लो आप लो। वो कौन सा बच्चा होगा? जैसे अभी भाई साहब मिले ना, कहाँ भाई साहब मिले जिनका स्कूल है, ये सेवा करते हैं, हाँ सेवा कर रहे हैं ना आज यहाँ पर। जब आप बच्चा बनेंगे ना तो भी आप टॉफ़ी जाके सबको देंगे, क्योंकि आपके पास देने का संस्कार होगा। सब आपको बोलेंगे टॉफ़ी आप अपने पास रखो, बोलो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे लिए आप लो। ये संस्कार लेकर जाती है आत्मा। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं मेरी टॉफ़ी, मैं अपना टॉयस किसी को नहीं दूंगा। ये बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं है, ये बच्चा वो संस्कार अपने साथ लेकर जाता है। So there are only two things which are permanent, which are eternal, my sanskar and my karam. Rest everything is temporary in every costume. हम एक बॉडी छोड़ेंगे, दूसरी लेंगे, न्यू बॉडी, न्यू फैमिली, न्यू रोल्स, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 100 years. Then again leave that body, new roles, new responsibilities, 100 years. Journey goes on. Journey goes on. Everything in those 100 years is for 100 years. But karam and sanskar is forever. It is getting recorded forever. So my last moment in this costume, इस शरीर में मेरा आखिरी क्षण is like 31st March, closing balance sheet. The last when we leave like this, it is the last transaction is हम कैसे शरीर छोड़ते हैं। इसीलिए लास्ट ट्रांजैक्शन राइट होनी चाहिए। अंतमति सो गति होती है, कि अंत में मन की स्थिति कैसी है, आगे की गति वैसी हो जाएगी। तो जाते समय कैसा होना चाहिए हमें, जाते समय कैसा होना चाहिए हमें, कैसा जाना चाहेंगे, जाना मतलब यहाँ से कैसे जाना चाहेंगे, कैसा होना चाहिए हमें, बताओ कैसे जाना चाहिए। रोते रोते जाना चाहिए? नहीं, हंसते हंसते जाना चाहिए। कौन कौन हैप्पी हैप्पी जा सकता है? हैप्पी हैप्पी जा सकते हैं। अभी तक हैप्पीली जी नहीं रह जाएगी कैसे फिर हैप्पीली। लेकिन जो हैप्पीली जीना सीख लेता है ना, वो बहुत हैप्पीली जाएगा। क्योंकि हैप्पी जीना मतलब डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट ऐसा खींच खींच के नहीं जीते हैं। तो जाने के टाइम बहुत इजी छोड़ेंगे। स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस द आर्ट कि जाना कैसे है, एंड ऑल्सो टीचेस अस कि कोई और जा रहा है तो उसको जाने देना कैसे है। बिकॉज दीज टू थिंग्स आर अ सर्टनिटी। कल मौसम कैसा होगा वो सर्टन नहीं है, लेकिन मैंने जाना है वो सर्टन है, और आपने जाना है वो सर्टन है। तो जो चीज़ सर्टन है उसके लिए ये माइंड प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हम बार बार रोज़ एक दूसरे को कहते हैं आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई विल नेवर बी एबल टू लिव विदाउट यू। क्यों ऑपोजिट बोलते हैं रोज? क्यों बोलते हैं ये बार बार आई विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट यू, आई विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट यू, जब पता है लिव करना होगा। जब पता है लिव करना होगा तो उल्टा क्या बोलना चाहिए एक दूसरे को? चेंज करते हैं ना आज लाइन। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, हमें क्या बोलना चाहिए? आई कैन। बोलो बोलो अच्छे से। आपको पता है कितना कितना पेन क्रिएट हो जाता है इन अ सिचुएशन विच इज सर्टन, एंड वो सारा पेन किसके पास जाता है पता है? वो सारा पेन किसके पास जा रहा है जो हमने क्रिएट किया? वो सारा पेन उस सोल के पास जा रहा है जो एक नई जर्नी में जा रही है। तो आप जस्ट विजुअलाइज करो, एक सोल यहाँ से निकलती है एंड माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, एक नया कॉस्ट्यूम बन रहा है उस बॉडी के अंदर। तो नया कॉस्ट्यूम बनने के टाइम वो सोल की स्टेट कैसी होनी चाहिए?
हैप्पी होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए। आज भी अगर हम थोड़े से स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो वो सोल को उस नया कॉस्ट्यूम जब बन रहा है तो उसको कैसा होना चाहिए? वहाँ हैप्पी होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, तो उसकी बॉडी बहुत हेल्दी बनेगी। एक तो वो सोल दर्द में है क्योंकि वो सब कुछ छोड़ कर आ गए, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और दूसरा वो सेटल होने की कोशिश भी करेंगे तो हम यहाँ से इतना दर्द भेज देते हैं उनको। सो नेवर रेडिएट पेन टू द सोल हु हैज मूव्ड फॉरवर्ड, यू आर मेकिंग देयर जर्नी वेरी डिफिकल्ट। अगर आप कहीं गए और आपको हर 2 मिनट के बाद फ़ोन आता है, आप कैसे चले गए, वापस आ जाओ, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तो आप सेटल हो पाएंगे उधर? तो दिस इज व्हाट वी डू। सो व्हेन समबडी इज लीविंग, हाउ शुड वी सेंड देम? हाउ शुड वी सेंड देम? कैसे भेजना है? डरो मत, आज कोई नहीं जा रहा। ऑलरेडी सोचने लग गए हम कैसे भेजेंगे, कैसे भी। जब आपको रियलाइज और अंडरस्टैंड हो जाएगा कि उनके लिए क्या अच्छा है। स्वार्थ, अटैचमेंट मीन्स हाउ विल आई लिव विदाउट यू। लव मीन्स यू आर गोइंग फॉरवर्ड, सो व्हाट शुड आई गिव यू। जैसे आपका बच्चा अगर अमेरिका चला जाए पढ़ने तो सब आपको बोलेंगे क्या आपने अपने बच्चे को इतनी दूर भेज दिया, दूसरे देश में भेज दिया, आप कैसे रहोगे अकेले? तो हम क्या बोलते हैं, हमारा कोई बात नहीं, उसका जीवन सेट हो जाना चाहिए। तो हम किसके बारे में सोच रहे हैं? उसका। इसी तरह जब आत्मा आगे जानी है, उसका जीवन सेट होना चाहिए, उसके लिए हमें अपने को सेट रखना पड़ेगा। हमें ये वाइब्रेशन रोज़ भेजनी पड़ेगी, तुम हमारी चिंता मत करना, हम बिल्कुल ठीक हैं। बोल सकते हैं, तुम हमारी चिंता नहीं करना, हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारा नया कॉस्ट्यूम परफेक्ट होगा, तुम्हारा नया परिवार बहुत परफेक्ट होगा, तुम्हारी डेस्टिनी परफेक्ट होगी। इतना ब्लेसिंग्स भेजते जाओ कि उसका पेन वहाँ ख़त्म हो जाए। लेकिन ये हम तब सब कर सकेंगे जब हमें याद होगा मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है, वो चले गए आगे, लेकिन वो फिनिश नहीं हुए हैं, उनकी एक नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, मुझे उस नई लाइफ, ये सब तो याद होना चाहिए ना, ये पावर चाहिए रोज़। तो इसलिए आज से अटेंशन। सब कुछ करते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या? जो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, कर्म और संस्कार। अभी भैया फ़ोटो खींच रहे थे, तो जैसे ही हमारी फ़ोटो खींचने लगती है हम कैसे हो जाते हैं? फ़ोटो खींचने लगती है तो कैसे हो जाते हैं? एकदम ऐसा ठीक हो जाते हैं। फिर सपोज़ वो पूरे ग्रुप की फ़ोटो खींची और आपको कल व्हाट्सएप पे मिली, तो आप सबसे पहले किसको देखेंगे उस पूरे ग्रुप के अंदर? मैं। एक फ़ोटो में भी हम ध्यान रखते हैं कि हम कैसे हैं। हमने कहा फ़ोटो तो हो गई ना, देखो मैं ठीक से नहीं बैठा था। वो एक रिकॉर्डिंग है जो चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ जो रिकॉर्ड हो जाता है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो रिकॉर्ड हो गया। तो आज पूरा दिन ध्यान रखेंगे, सामने वाला कैसा भी कर्म कर रहा हो, मेरा कर्म आज कैसा होना चाहिए? मेरा कर्म आज कैसा होना चाहिए? कैसा होगा आज? अच्छा या बहुत अच्छा या बहुत बहुत अच्छा या परफेक्ट? परफेक्ट। परफेक्ट करना, बिकॉज उसी से हमारी डेस्टिनी बनती है। जीवन में जब भी कुछ ऐसा होता है जो ठीक नहीं होता, तो हम कहते परमात्मा की मर्जी थी। वी से एवरीथिंग हैपेंस एज पर गॉड्स विल। किस किस को लगता है सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है? हाथ उठाओ। सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। आज आप सुबह सुबह किसकी मर्जी से आए? किसकी मर्जी से आए हो आज यहाँ? हाँ, आज आपने जो ड्रेस कबर्ड से निकाली और पहनी, किसकी मर्जी से पहनी? भगवान ने बताया कौन सी ड्रेस पहननी? तो किसने किया? हर सारा दिन हर चीज़ कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा होता तो हमारा तो गलत कर्म कभी होगा ही नहीं। अगर आपका बच्चा हर कर्म आपकी मर्जी से करेगा, आप उसको गलती करने ही नहीं देंगे कभी भी। अगर परमात्मा हमारी डेस्टिनी लिख रहे होते
तो हमारी डेस्टिनी कैसे होती? परफेक्ट। और हमारी डेस्टिनी होती इक्वली परफेक्ट। आज ना हमारी डेस्टिनी परफेक्ट है, कभी कुछ थोड़ा है, कभी कुछ थोड़ा है, बाकी ज़्यादा जो हो रहा है वो तो अलग, और इक्वल भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। किसी के पास 10 लोग हैं उसकी फैमिली में, किसी के पास पैदा होते ही बच्चे भी पेरेंट्स भी नहीं हैं, इक्वल है ये कोई? किसी के पास 100 इयर्स तक हेल्दी बॉडी है, किसी के पास पैदा होते ही बॉडी में कुछ डिजीज है, ये इक्वल है कोई? इट्स नॉट इक्वल एट ऑल। तो डेस्टिनी इज नॉट एट ऑल इक्वल फॉर एवरीबडी, एंड टुडे डेस्टिनी इज नॉट एब्सोल्युटली परफेक्ट ऑल्सो। कभी कुछ थोड़ी बीमारी आती, कभी कुछ थोड़ा किसी के साथ झगड़ा हो जाए, कुछ छोटा छोटा तो चल ही रहा है, बाकी बड़ा तो और कुछ। तो गॉड कैन नॉट राइट दिस काइंड ऑफ अ डेस्टिनी। भगवान कोविड नहीं लिखेगा, भगवान वॉर नहीं लिखेगा, भगवान किसी का यंग एज में शरीर छोड़ना नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा। एक और बिलीफ सिस्टम बचपन से सुना था कि एज पर इज माई कर्मा सो इज माई डेस्टिनी, लॉ ऑफ कर्मा, कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य होगा। तो 2 बिलीफ सिस्टम हो गए कि मेरी डेस्टिनी मेरे कर्म से, मेरी डेस्टिनी उसकी मर्जी से। तो कौन सा राइट लगता है? कौन सा राइट होगा? डेस्टिनी हमारे कर्म से या डेस्टिनी भगवान की मर्जी से? हमारे कर्म से। हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी हम कुछ गलती करते हैं, इसलिए हमारी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, लेकिन बीच में कुछ कुछ बातें आ जाती हैं। हमारे कर्म एक जैसे नहीं हैं, तो हमारी डेस्टिनी भी एक जैसी नहीं हो सकती है। सो हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं, इस जीवन का भी, और फिर शरीर छोड़ा, अगली जन्म पत्री भी इस जीवन के कर्म से बन रही है। हमें सोचा हम जो कर रहे हैं उससे बन रहा है, हम यहाँ जो कर रहे हैं उससे बन रहा है। तो अब अगली बार मन कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो हाथ कहाँ जाएगा? पहले कहाँ जा रहा था? ईश्वर की मर्जी। लोग भी आके कहते गॉड्स विल। वो इंश्योरेंस में भी लिखते हैं ना, एक्ट ऑफ गॉड। कुछ भी एक्ट ऑफ गॉड से हुआ तो हमने इंश्योरेंस आपको नहीं देनी। मतलब अगर फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, हम कहते हैं उसको एक्ट ऑफ गॉड। हम सोचते भी नहीं एक सेकेंड कि एक्ट ऑफ गॉड को, हम इतनी कलामिटी को एक्ट ऑफ गॉड लिखते हैं, तो वो गॉड कैसे हो गया? भगवान हमारे को अर्थक्वेक और फ्लड्स क्यों देगा? उसको परम पिता कहते हैं, और फिर कहते हैं ये एक्ट ऑफ गॉड है। सो हाउ मच वी आर डूइंग विदाउट इवन थिंकिंग व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर राइटिंग। सो आज से कुछ भी हो जाए, अच्छा भी एंड कभी कभी कुछ थोड़ा मुश्किल भी, ऑलवेज टू रिमेंबर दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माय कर्म। परमात्मा भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता मतलब ये नहीं भाग्य लिखता है, लेकिन भाग्य लिखने का विधान सिखाता है। द मेथड टू राइट द गुड डेस्टिनी भगवान विल टीच अस बाय टीचिंग अस हाउ टू डू राइट कर्मा, बट डज नॉट राइट आवर डेस्टिनी। जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ना सिखा सकते हैं, अच्छा काम करना सिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी कर्म तो वो बच्चा अपना अपना करेगा। और इसीलिए एक ही पेरेंट के 2 बच्चे होंगे, लेकिन दोनों की डेस्टिनी बिल्कुल अलग अलग होगी। पेरेंट तो दोनों को सेम ही सिखाएगा, पेरेंट तो दोनों को सेम स्कूल में भी भेजेगा, लेकिन दोनों पढ़ेंगे अलग अलग। सेम विद भगवान, वो हम सबको एक जैसी शिक्षा देता है, एक जैसा ज्ञान देता है, लेकिन हम कर्म अलग अलग करते हैं। ठीक है? एक हाथ में एक बॉल पकड़ी अभी ऐसे, ये हम अपना कर्म फेंकने वाले हैं। एवरीबडी विल नीड टू डू दिस। नाउ दिस इज अ बॉल, दिस इज माई एनर्जी, माई एवरी थॉट, माई एवरी वर्ड, माई एवरी बिहेवियर। सोच, शब्द और व्यवहार, तीनों चीज़ें कर्म होता है। कर्म इज नॉट ओनली वॉट वी आर डूइंग, कर्म इज वॉट आई एम थिंकिंग, वॉट आई एम फीलिंग, माई इंटेंशन। सेवा की, उसके पीछे इंटेंशन क्या थी? देने के लिए सेवा कर रहे थे, या मेरा नाम सब लोग आए इसलिए सेवा कर रहे थे? तो कर्म के पीछे भी इंटेंशन। कर्म वो नहीं है सिर्फ जो दिखता है, कर्म वो है जो अंदर सोचा जा रहा है।
So my every thought, word, behavior is karam, energy that will go out like this. अब आप सोच समझ के अपनी बॉल फेंको सामने इस दीवार के ऊपर, सोच समझ के, सबको फेंकने, चलो उठाओ हाथ, इतनी ठंड थोड़ी है, हिलाओ हाथ को बाहर, हाँ, सोच दूसरे का, अब एक और ध्यान रखना है, दूसरे का हाथ नहीं देखना। आजकल हम दूसरे के कर्म को देखकर बहुत सारे कर्म करते हैं, वो ही कर्म करना, बॉल को बिल्कुल वैसे ही फेंकना जैसे आप चाहते हैं कि वो वापस आए आपके पास, क्योंकि वो बॉल उस बॉल पर हिट होकर वापस आने वाली है, उसी एंगल और उसी स्पीड के अनुसार जिस तरह से आपने भेजी थी। तब आप ये नहीं बोल सकते सब कर रहे थे तो मैंने इसलिए कर दिया, सब कर रहे थे तो उनकी बॉल उसके पास वापस आएगी ही, लेकिन मेरे पास भी आएगी। अब फेंको, फेंक दी और भूल जाओ, फेंको और भूल जाओ, लेकिन हम भूल जाएंगे, लेकिन वो बॉल तो वापस आने ही है। जो बॉल हम फेंकते हैं दैट इज थॉट्स, वर्ड्स, बिहेवियर, दैट इज कर्म। जो बॉल वापस आती है दैट इज सिचुएशंस, पीपल्स बिहेवियर, वर्क अप एंड डाउन, हेल्थ ऑफ बॉडी अप एंड डाउन, कुछ भी जो मेरे साथ हो रहा है दैट इज एनर्जी लाइक दिस। जो हम कर रहे हैं दैट इज एनर्जी लाइक दिस, जो मेरे साथ हो रहा है दैट इज एनर्जी लाइक दिस। हम कहते हैं ना, क्या बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, दैट इज एनर्जी लाइक दिस। सो ये जो हमने फेंका वो कर्म था, जो बॉल वापस आ रही है वो हमारी डेस्टिनी है। वो सिचुएशंस के रूप में आएगी, हेल्थ ऑफ बॉडी के रूप में आएगी, रिलेशनशिप के रूप में आएगी, कुछ भी शहर में जो हो रहा है उसके रूप में आएगी, दुनिया में आज हो रहा है जो। प्रकृति को देखो, आजकल प्रकृति कुछ कुछ उथल पुथल कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है। वो क्यों कर रही है, किसने कर्म किए थे ऐसे जिसका रिजल्ट वो आ रहा है अभी, किसके कर्मों का रिजल्ट था जो प्रकृति ऐसे कर रही है, हमारा। एवरी बॉल दैट इज थ्रोन हैज टू कम बैक, चाहे वो इमीडिएटली आती है, चाहे वो 1 घंटे के बाद आती है, चाहे वो 10 इयर्स के बाद आती है, चाहे वो 100 इयर्स के बाद आती है, फेंकी हुई बॉल वापस आनी ही है। इट हैज टू कम बैक, इट हैज टू कम बैक। टुडे वी आर सिटिंग हियर, body is healthy, mind is comfortable, it is a result of something thrown earlier. ऐसे नहीं हो सकता, कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा, सब कुछ जो मैंने फेंका था उसी का रिटर्न है। तो अब जब भी कुछ ऐसा होगा जो हमें पसंद नहीं है, समथिंग वी डोंट लाइक, एंड द माइंड सेज व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उंगली किस पर रखेंगे, फिंगर गोज ऑन, रखो, पुट द फिंगर देयर, फिंगर गोज टू, रखो ना, इतना सब पे रखी थी आज तक। हम जब भी मन कहते ना ऐसा क्यों हुआ, हमने कहते इधर 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 इधर, और जब इधर कोई नहीं मिलता तो उधर, अपने को छोड़ के सब पर उंगली डालते हैं। एंड क्योंकि हम दूसरों पर उंगली रखते हैं, हमारे पास पावर नहीं होती हमारी डेस्टिनी ठीक करने के लिए, क्योंकि हमें लगा उनको ठीक करना है, उनको ठीक करना है, नहीं तो उसको ठीक करना है। तो हम भगवान को भी रोज सुनाते रहते हैं कि उसको मेरी लाइफ में क्या क्या ठीक करना है, सुनाते हैं कि नहीं करते, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, और हमें पता है उसके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, तो हम इंसेंटिव भी देते हैं साथ में, आप ठीक कर दोगे तो आपको हम ये चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाना, मंदिर जाना। दिस हैज़ टू बी डन विद भावना, दैट इज ऑल्सो कर्म। दिस हैज़ टू बी डन विद लव, नॉट विद ये हो गया इसलिए हम करेंगे, और नहीं हो गया तो क्या करने की जरूरत है, काम तो मेरा किया नहीं भगवान ने, तो फिर मैं क्यों जाऊँ उधर। दिस वे, दिस ब्रिंग्स द मोस्ट प्योरेस्ट रिलेशनशिप ऑल्सो वेरी डाउन, वेरी डाउन। ठीक है, तो अपने भाग्य में कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी ठीक करना है, तो अब किसके पास जाना है, अब किसके पास जाना है, अब दिस इज पावर। भगवान से राइट कर्म करने का ज्ञान लेना है, उनसे कनेक्ट होकर मेडिटेशन में राइट कर्म करने की शक्ति लेनी है, लेकिन कर्म तो खुद ही करना पड़ेगा, वो नहीं कर्म कर रहे और वो नहीं भाग्य लिख रहे हमारा, तो कर्म तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो अब सारा दिन में ये चेक करना है,
सामने से बातें आ रही हैं, ठीक है, सामने से बातें आ रही हैं, वो बात जो आ रही है, इट इज़ अ रिटर्न ऑफ पास्ट कर्मा. हाउ आई रिस्पॉन्ड नाउ will be my जो सामने से बात आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, सिस्टर आप 1 मिनट खड़े होंगे, हाँ, ठीक है. नाउ सी हर एंड सी मी एंड सी हाउ द पास्ट एंड द प्रेजेंट कर्मा विल वर्क. राइट नाउ आई विल टॉक बैडली टू हर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. ओके, सो मेनी पीपल, इतने लोगों के सामने उनके साथ गलत बोलूँगी, तो उनके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? उनकी तरफ वो बॉल आ रही है, राइट? इट्स कमिंग टू हर. फर्स्ट हर माइंड विल से व्हाई इज दिस हैपनिंग विथ मी. तो आंसर क्या है? बॉल क्यों आ रही है सामने से? बॉल सामने से क्यों आ रही है? बोलिए, बॉल क्यों आ रही है सामने से? क्योंकि मैंने, बोलो कोई भी लैंग्वेज में बोलो, लेकिन बोलो ज़रूर, क्योंकि वो यहाँ फिट होने की ज़रूरत है. बॉल सामने से क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने फेंकी थी. ऑलवेज से दिस एंड पुट अ फुल स्टॉप टू ऑल योर वेस्ट थॉट्स. व्हाई did this, how they did this, why with me. It's a waste of energy. And when we create all these thoughts, we are creating a wrong karma again with the thought, because we are blaming the other person. तो इनके पास ये बॉल क्यों, आपके पास ये बॉल क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? क्योंकि आपने पहले, नथिंग कैन कम लाइक दिस. ये सामने की वॉल से आपके पास सडनली बॉल नहीं आ सकती है. जब तक इसको फिट कर लो, विजुअली फिट कर लो. यहाँ पर सामने से नहीं, बहन माइक नहीं चाहिए. सामने से बॉल आपके पास नहीं आ सकती है. अच्छी बॉल भी नहीं आ सकती है, गलत बॉल भी नहीं आ सकती है. आज अगर आपके पास एक हेल्दी बॉडी है, जो आप सुबह सुबह उठकर यहाँ बैठे हैं, वो बिना अच्छे कर्म के नहीं मिली है. कुछ भी अच्छा हमारी लाइफ में बिना एक अच्छी बॉल फेंके नहीं हुआ है. लेकिन फिर कुछ जो गलत फेंकी है, वो भी तो वापस आएगी ना कभी ना कभी. जब अच्छी वाली बॉल वापस आती है, हम नहीं बोलते मेरे साथ आज सब कुछ इतना अच्छा क्यों हो रहा है. हम उसको शुक्रिया करते हैं, अपने कर्मों को शुक्रिया करते हैं, अच्छे कर्म करते रहते हैं. सो व्हेन आई टॉक बैडली टू यू, यू हैव टू रिमेंबर दैट द बॉल इज कमिंग लाइक दिस. व्हाई? बिकॉज यू हैड थ्रोन इट अर्लियर. अब सिर्फ बताना कि क्या करना है. ये तो क्लियर हो गया. मैंने पहले फेंकी थी, इसलिए इसने पहले फेंकी थी, इसलिए यहाँ से वापस आ रही है. नाउ यू हैव टू आंसर. Can she control this ball which is coming from me to her? Can she change this ball which is coming from me to her? वो पहले ये वाली बॉल को चेंज कर सकते हैं कि नहीं, वो देखना है. जो यहाँ से बॉल जा रही है उसको वो चेंज कर सकते हैं, मुझे वो चेंज कर सकते हैं. तो किसी को चेंज करने की कोशिश नहीं करना. हम उनको, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऐसी बॉल नहीं फेंकनी चाहिए. डोंट टेल पीपल उनको कैसी बॉल फेंकनी चाहिए, बिकॉज लोगों का कर्म हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारे कर्म में कौन सा कंट्रोल में है? अब जो आपने कहा कि अब वो अच्छे से बात करेगी, अब वो अपोलोजाइज करे, सॉरी करे, या कुछ अच्छा बोले. बट मैं जब गलती कर रही हूँ तो वो सॉरी तो बोलेगी नहीं, क्योंकि वो तो कुछ गलती कर ही नहीं रही थी. लेकिन अब अगर वो गुस्सा करेगी तो वो फिर से कौन सी बॉल फेंक देगी? सो लेट्स से यहाँ से जो बॉल जा रही है उसको ब्लैक कलर रखते हैं, क्योंकि मैं रॉन्ग बिहेवियर दे रही हूँ ना, मैं क्रिटिकल अब्यूजर. सो देयर इज दिस ब्लैक कलर बॉल गोइंग फ्रॉम हियर. इफ शी गेट्स एंग्री, तो वहाँ से फिर से कौन से कलर की बॉल आएगी? ब्लैक. शी डजंट गेट एंग्री बट शी ओनली स्टार्ट्स क्राइंग. तो फिर से कौन से कलर की बॉल आ रही है? ब्लैक. वो चुप हो जाती है, लेकिन अंदर मेरे से बहुत नाराज रहती है. कौन से कलर की बॉल जा रही है? फिर से ब्लैक. क्या अब जब इसके पास ब्लैक बॉल आ रही है, वो ब्लैक क्यों आ रही है? क्योंकि
वो ब्लैक क्यों आ रही है? क्योंकि पहले ब्लैक फेंकी थी। अब जब ब्लैक आ रही है, अब इसको कौन से कलर की बॉल फेंकनी चाहिए? हो गया ना, इजी है ना? देखो, जो भैया शूटिंग करे उसको भी आगे सबसे पहले आंसर उसने दे दिया। इतना इजी है, इतना इजी है, लेकिन हम ध्यान नहीं रखते। तो जब ब्लैक आ रहा होता है, हम फिर से क्या भेज देते हैं? ब्लैक ही भेज देते हैं। और क्योंकि हम फिर से ब्लैक भेजते हैं तो फिर से ब्लैक आएगा, फिर से आएगा, हम फिर से भेजेंगे, फिर वो फिर से आएगा। और ब्लैक फेंकते 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 हमने ब्लैक युग, कलयुग क्रिएट कर दिया। ये कलयुग मतलब ब्लैक युग, जहाँ हम सारे कौन से वाले बॉल्स फेंक रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं खुशी नहीं है, क्योंकि हमने वाइट बॉल नहीं फेंक रहे हैं। बात आती है हमें वाइट बॉल फेंकनी पड़ेगी। ठीक है, सेट? सो दिस ब्लैक बॉल विच इज कमिंग टू हर, दैट शी कैन नॉट स्टॉप, क्योंकि दिस ब्लैक बॉल शी हैड थ्रोन अर्लियर। आपने यहाँ से इस दीवार पर ब्लैक बॉल फेंकी, वो ब्लैक बॉल आपके पास वापस आनी ही है, उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। आप किसी के पास भी चले जाओ इस सृष्टि पर और बोलो मेरा ये चेंज कर दो, मेरे भाग्य में ये चेंज कर दो, ये प्रॉब्लम आने से मेरे पास रोक दो। यू आर टेलिंग देम स्टॉप द बॉल फ्रॉम कमिंग टू मी। नोबडी कैन डू इट, नोबडी, बिकॉज दैट बॉल आई हैव ऑलरेडी थ्रोन। भगवान कहता है मैं भी आपके कर्मों का हिसाब किताब आपके पास आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वो बॉल आप ऑलरेडी फेंक चुके हैं। लेकिन वो हमें क्या सिखाता है कि जब वो वाली ब्लैक बॉल आएगी तो इस बार कौन सी फेंकनी है। और जैसे ही इस बार हम वाइट फेंकते हैं तो हमारी सफरिंग क्या हो जाती है? बिल्कुल काम। तो वो हमें ब्लैक बॉल लगती नहीं है, क्योंकि हमने इस बार वाइट बॉल फेंक दी है। अभी अगर मैं इनको ब्लैक फेंक रही हूँ, इफ शी गेट्स एंग्री, शी क्राइज, शी गेट्स अपसेट, इट इज सफरिंग। बट इफ शी थ्रोज अ वाइट बॉल सेइंग ओके, ये मेरा पास्ट ही कार्मिक अकाउंट था जो ये मेरे साथ इस तरह से कर रहे हैं, अभी मैं भगवान को याद करके इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज देती हूँ, तो उनको कोई सफरिंग हुई अभी नहीं। तो सफरिंग नहीं हो सकती डेस्टिनी में अगर हमारा प्रेजेंट कर्म राइट होगा तब। किसी को 100 फीवर होता है, वो उनके पास एक छोटी सी ब्लैक बॉल आई है 100 फीवर जितनी, लेकिन उनकी जो प्रेजेंट बॉल्स वो फेंकते ना, हाय मैं बीमार, मैंने आज ऑफिस नहीं जाना, मेरे को कुछ करना नहीं है, मेरा कुछ करने को मूड नहीं है, तो वो सफरिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट ब्लैक बॉल्स फिर से फेंके। किसी के जीवन में सीरियस कैंसर आया है, बहुत बड़ी वाली ब्लैक बॉल आई है, लेकिन अभी वो बहुत पॉजिटिव है, कहते हैं हाँ आया ना, कोई बात नहीं, आज तो बहुत इलाज है, मैं अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके मैं इसमें से बाहर निकल के आ जाऊंगा। उनको सफरिंग, तो सफरिंग इज नॉट बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग टू अस। हैप्पीनेस और सफरिंग इज बेस्ड ऑन हाउ वी रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज हैपनिंग टू अस। तो एस्ट्रोलॉजी, वो जो जन्म पत्री हमारे पास घर पे पड़ी है, इट इज़ अ साइंस विच इज़ टेलिंग यू कि आपकी लाइफ में कौन सी बॉल्स आने वाली है। वो आपको बताएंगे इस एज में ये होगा, ये से ये ईयर भारी है, मतलब कुछ 2-3 ब्लैक बॉल्स आने वाली हैं। वो आपको सिर्फ ये बता सकते हैं, क्योंकि वो साइंस ही उस चीज़ की है। वो आपको ये बता सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सी अच्छी, कौन सी थोड़ी मुश्किल, और शायद एक आधी कभी बहुत मुश्किल बॉल आने वाली है। ये वो सारा बता सकते हैं, क्योंकि वो बता सकते हैं, क्योंकि उनको वो साइंस इज बेस्ड ऑन कौन सी फेंकी थी, कौन सी वापस आ रही है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि जब वो बॉल आ रही है, अब हमने कौन सी बॉल राइट कर्मा में फेंकनी है। स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन हमें वो सिखाती है। तो किस पर फोकस होना चाहिए, जो बॉल आ रही है या जो बॉल फेंकनी है? बहुत ज़्यादा पता नहीं करना चाहिए कि कौन सी बॉल आने वाली है। इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन जब माइंड में चली जाती है ना, जल्दी पहले बॉल आने से पहले ही चली जाती है कि ये आने वाली है, तो पहले से ही एंग्जाइटी और फियर क्रिएट होने लग जाता है। और जब पहले से ही क्रिएट होने लग जाता है, बॉल तो फिर भी आने वाली है, लेकिन आने से पहले मैंने इतनी सारी ब्लैक बॉल सिर्फ फियर, डाउट, एंग्जाइटी की भेज दी है।
इसीलिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्ट्रेंथ इतनी रखनी है कि कुछ भी हो जाए तो हम उसको कैसे क्रॉस करेंगे, कैसे क्रॉस करेंगे। आप घर बनाते हैं, घर की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके ये नहीं पूछते अगले 5 साल में अर्थक्वेक आने वाला है क्या, अगले 10 साल में सुनामी आने वाले हैं क्या, पूछते हैं कैसे जाके किसी को? नहीं पूछते। हम सिर्फ आर्किटेक्ट को और कंस्ट्रक्शन वाले को क्या बोलते हैं, बस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना दे, आंधी तूफान कुछ भी आए घर खड़ा रहना चाहिए। वर्क ऑन द फाउंडेशन, डोंट वर्क ऑन फाइंडिंग आउट व्हाट इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर। और जब आप अपने संस्कार और कर्म प्रेजेंट लाइफ में ऊपर उठा लेते हैं तो वो बॉल तो आएगी जो आनी थी, लेकिन आपको कुछ उसकी सफरिंग नहीं फील होगी। तो जिन्होंने आपको जन्म पत्री बनाई उन्होंने एक्यूरेट बताया, उन्होंने कहा आपका ये से ये साल बहुत भारी है, उन्होंने राइट बताया। लेकिन हमने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा दी थी कि हमें वो भारी नहीं लगा वो साल, तो हमने कहा अरे वो बात तो आई और बात तो चली गई, क्योंकि आपने अपना प्रेजेंट कर्म और संस्कार। इसीलिए सारी प्रेडिक्शंस राइट नहीं निकलती हैं, कुछ प्रेडिक्शंस राइट निकलेंगी, कुछ प्रेडिक्शंस राइट नहीं निकलेंगी, डिपेंडिंग ऑन हम इस बार कौन से वाला कर्मा फेंक रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास वाइट बॉल आ रही है, उनके पास सामने से एक रिश्ता बहुत प्यारा आ रहा है, उनके घर में उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत वेल्थ देकर गए हैं, लेकिन वो अभी गलत कर्म कर देते हैं। और अभी गलत कर्म करके जो डेस्टिनी आई थी उस डेस्टिनी को भी क्या कर देते हैं। सो लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट इज कमिंग टू अस, लाइफ इज अबाउट हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट इज कमिंग टू अस। दैट इज हैज टू बी रिमेंबर्ड। पावर इज नॉट इन व्हाट वी डिड इन द पास्ट, पावर इज व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। तो अब आपके साथ कोई कैसा भी बिहेवियर कर रहा है, आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ रही है, आपको सिर्फ एक ही अटेंशन रखना है कि मेरा प्रेजेंट कर्म कैसा होगा, कैसा होगा। कर लेंगे आज सारा दिन वाइट बॉल फेंक लेंगे। अच्छा पहले आंख बंद करके देखो कोई है जो आपको ब्लैक बॉल फेंक रहा है, उनको पहले सामने लेकर आओ, पहले तो उनका कार्मिक अकाउंट अभी ठीक करते हैं। सबसे पहली चीज, आज से उनको गलत बोलना बंद करो मन में, ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं। वो मेरे साथ गलत नहीं कर रहे, मैं उनके साथ गलत करके आई हूँ। सपोज ये बहन और मैं, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और फिर फ्रेंडशिप करते करते हमने बिजनेस करना शुरू कर दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। फिर मेरी इंटेंशन में कुछ गड़बड़ आ गई और मैंने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। मैंने सारा कुछ अपने नाम पे ले लिया, इनको कुछ नहीं दिया। इनका मेरा पैसा गया, इनका मन दुखी हो गया जिस वजह से मैंने जो किया, इनका पूरा परिवार दुखी हो गया, और इतना दुख इनके घर में आया कि इनकी बॉडी की हेल्थ पर भी असर हो गया। ये सारे कर्म किसने किए थे? मैंने किए थे। और मेरे कर्म की वजह से उनकी वेल्थ गई, उनकी हेल्थ गई, उनकी हैप्पीनेस गई, उनकी फैमिली बिखर गई। लेकिन मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन कर्म तो मैंने कर दिया है। फिर आई द सोल लीव द बॉडी, वो भी कुछ सालों के बाद अपनी बॉडी लीव कर देगी और कभी ना कभी हम फिर से मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कार्मिक अकाउंट है ना, वो बॉडी और बॉडी के बीच में नहीं है, कार्मिक अकाउंट किसके बीच में है? इट इज बिटवीन द सोल एंड द अदर सोल। इसीलिए जब मैं यहाँ से खड़े होकर उनको डांट रही हूँ, हाउ कैन शी से कि ये मेरे पास्ट कर्म का रिटर्न है? आई एम तो मीटिंग हर फर्स्ट टाइम टुडे, बट आई एम मीटिंग हर फर्स्ट टाइम टुडे इन दिस कॉस्ट्यूम, बट आई कैन नॉट थ्रो अ बॉल एट हर unless I have received it before, some time before.
ये सिर्फ एक ड्रेस है और ये भी सिर्फ एक ड्रेस है। अगर आज मैं इस ड्रेस में आपसे पैसे बोरो करूं, ठीक है, आई जस्ट बोरो, ठीक है भैया, आई बोरो 1000 रुपीज़ फ्रॉम हिम, इस ड्रेस में बोरो किया और उन्होंने ये ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है। फिर 1 वीक के बाद हम फिर मिलते हैं, उस दिन उन्होंने वाइट ड्रेस पहनी हुई है, मैंने कोई और कलर की ड्रेस पहनी हुई है, तो 1000 रुपीज़ वापस करने नहीं करने? करने नहीं करने? करने? मैं उनको बोलूँ भूल जाना, तुम्हारी भी ड्रेस चेंज होगी, मेरी भी ड्रेस चेंज होगी, भूल जाओ वो पैसे। वो बोलेगा ड्रेस का क्या लेना देना पैसों से? पैसे आपने मेरे से लिए थे, आपको मुझे वापस देने हैं, आप, नॉट द ड्रेस, नॉट दिस ड्रेस, नॉट दिस ड्रेस ऑल्सो। सो पहले बात तो किसी का पैसों का हिसाब किताब कभी नहीं रखना। नेवर लेंड नेवर बोरो। अगर आत्मा शरीर छोड़ गई कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना होता है। हर कार्मिक ट्रांजैक्शन कैसी होनी चाहिए? सॉर्टेड, क्योंकि आजकल पता नहीं है, कभी भी छोड़ सकता है कोई भी। अब ये 1000 रुपीज़ तो ईजी है देखना कि मैंने दिया था, मेरे को वापस मिलना चाहिए, लेकिन मैंने उनके साथ इतना गलत किया था जो उनकी हैप्पीनेस चली गई, उनकी हेल्थ चली गई, उनकी वेल्थ चली गई, उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई और मैंने आराम से मौज की जीवन जी के मैंने शरीर छोड़ दिया, उन्होंने भी छोड़ दिया। हम फिर से मिलेंगे ना, मिलेंगे ना, और जब हम मिलेंगे तो क्या होगा? कुछ होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर एक के घर में वो गीता सार टंगा होता है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होगा वो बहुत अच्छा। क्यों बहुत अच्छा? इतना कुछ गलत हो रहा है, बहुत अच्छा क्यों बोलते हैं? तो बहुत अच्छा मतलब सही हो रहा है, एज पर द लॉ ऑफ कर्मा, कुछ गलत नहीं हो सकता। वो मेरी लाइफ में क्या बनकर आएगी? अब आना तो है ना वापस, इतना कुछ मैंने किया उनके साथ। अब वो मेरी लाइफ में कुछ ऐसा बनकर आएंगे कि मेरे माइंड भी दुखी होगा, मेरी वेल्थ भी ऊपर नीचे जाएगी और उसका असर ऑटोमेटिकली मेरी हेल्थ पर पड़ जाएगा। वो मेरी लाइफ में क्या बनकर आ सकते? कौन से रिलेशनशिप में आएंगे? Will she come as my neighbor? No. Where does she have to come? कहाँ आना पड़ता है? कहाँ आना पड़ता है? बहुत नज़दीक, बहुत नज़दीक आना पड़ता है। जितना कार्मिक अकाउंट बड़ा होता है ना, नज़दीक ही आना पड़ता है। इसीलिए जितने भी आज कार्मिक अकाउंट है, पहले सबकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, तो उनको फेस करना और उनको चेंज करना बहुत ईजी हो जाएगा। जब तक ब्लेम करते रहेंगे तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम अननोइंगली फिर से ब्लैक बॉल भेज देंगे, तो वो हमारे किसी भी रिश्ते में आ सकते हैं। वो भाई भाई, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चाइल्ड, कोई भी रिश्ते में आ सकते हैं। ये बाहरी वाले कार्मिक अकाउंट नज़दीक ही आते हैं, लेकिन हमें याद रखना है वो जो मेरे साथ आज कर रहे हैं, हम पहले करके आए थे, और अब हमें क्या करना है? अब हमें उस कार्मिक अकाउंट को क्या करना है? सेटल करना है, ताकि इस बार की डेस्टिनी भी अच्छी, और अगली बार जब मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? हैप्पी मिलेंगे। तो इसलिए अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, हम उसको चोट पहले देकर आए हैं, तो सबसे पहले मन में जाकर नहीं उनको, लेकिन मन में पहले हमें उनको सॉरी बोलना है जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। उनकी चोट पर दवाई लगाओ। कोई हमारे साथ गलत नहीं कर सकता जब तक हम उसको मार के नहीं आए थे पहले कोई कर्म से। तो मन से उनको पुराने कर्म के लिए सॉरी बोल दो। फिर वो जो अभी हमारे साथ कर रहे हैं उसके लिए उनको फॉरगिव करो, मतलब फर्स्ट वाइट बॉल भेजो। और फिर तीसरा, उनको परमात्मा को याद करके इतनी ब्लेसिंग्स भेजो, इतनी वाइट बॉल्स भेजो, इतनी वाइट बॉल्स भेजो कि जो वो कर रहे हैं उसका सफरिंग
हमारे ऊपर नहीं होगा। और दूसरा, वो वाइट बॉल्स जाते 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 उनका कर्म भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, हमारा फ्यूचर भी सेफ हो जाएगा, प्रेजेंट भी करेक्ट हो जाएगा। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम माई पास्ट बॉल इज कमिंग बैक टू मी। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमारा पास्ट वापस आ रहा है। हम जो अभी कर्म करेंगे वो हमारा प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है, और जो आज हम बॉल फेंकेंगे वो ही वापस आएगा, मतलब फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। पास्ट आ रहा है, प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है, फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। तो पावर किस में है, पास्ट में या प्रेजेंट में? प्रेजेंट। सो ऑलवेज फोकस ऑन प्रेजेंट करना। तो इसलिए कोई भी है जिसको क्षमा करना है, फॉरगिव करना है, टाइम नहीं लगाना, टाइम नहीं लगाना चाहिए फॉरगिव करने में। कितनी जल्दी फॉरगिव करना चाहिए? किसको फॉरगिव कर रहे हैं हम? किसको फॉरगिव कर रहे हैं हम? अपने को फॉरगिव कर रहे हैं हम। अपने कर्म को क्या कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। 4 एनर्जीज होती हैं कर्म करने की, तो इसलिए चारों का ध्यान रखना है। धन, अन्न, मन, तन। वेल्थ, फूड, माइंड, बॉडी। धन से अन्न खरीदते हैं। जैसा अन्न वैसा मन होता है, और जैसा मन होता है वैसा तन होता है। वो डॉक्टर बोलता है साइकोसोमैटिक, स्ट्रेस से हो रही है बीमारियां। तो धन, अन्न, मन, तन। सबसे पहले घर में धन जो आता है वो प्योर आना चाहिए, वो हमारा फर्स्ट कर्म एनर्जी है, प्योर आना चाहिए। इसलिए वर्क प्लेस पे सेवा भाव, प्यार से सबके साथ काम होना चाहिए। चिल्ला के, गुस्सा करके, किसी के साथ गलत करके, ऐसे धन कभी नहीं कमाना है। धन हमेशा ब्लेसिंग्स के साथ घर आना चाहिए। सपोज आज आप जाते जाते एक फ्रूट शॉप पे रुकते हैं और आप उस भैया को बोलते हैं 1 किलो एप्पल दो, और वो आपको प्यार से बोलता है आप मेरे से मत लो, आप सामने वाली दुकान से लो, मेरे पास आज फ्रेश नहीं है। मिल सकते हैं ऐसे लोग कि नहीं मिल सकते? नहीं मिल सकते। आप ही हो इतने अच्छे, अभी भी अच्छे लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, मिल जाते हैं ऐसे लोग भी। कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगे जरूर। कर्म हमने गलत क्यों करने शुरू किए ना, इसलिए मैंने बोला था दूसरों का बॉल देखकर बॉल नहीं फेंकना। हम सबके पास अच्छे कर्म करने की विजडम है, बट हम कहते कोई भी ऐसा नहीं कर रहा, तो हम भी अपने बॉल को चेंज कर देते हैं। तो वो जब आपको बोलेगा आप मेरे से आज नहीं खरीदो, किसी और से खरीदो, उसका बिजनेस है, उसके लिए वो 200-300 रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन उसने अपने बारे में नहीं सोचा। उसने किसके बारे में सोचा? उसने आपके बारे में सोचा। दिस इज बिजनेस। बिजनेस ऐसे नहीं होता, बिजनेस भी ऐसे ही होता है। चैरिटी नहीं है, बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस भी इस इंटेंशन से नहीं करना चाहिए। बिजनेस इस इंटेंशन से करना चाहिए कि दूसरे का फायदा हो। अब उसने आपको बोला कि नहीं आप मेरे से नहीं लो, आप उस दुकान से लो, उसके पास फ्रेश है। उस दिन उसने पैसे नहीं कमाए, डिड नॉट अर्न मनी, लेकिन उस दिन उसने क्या कमाया? कुछ कमाया कि नहीं कमाया? उस दिन क्या कमाया? उस दिन उसने आपसे ब्लेसिंग्स। आप घर जाएंगे, आप बोलेंगे कमाल है, कलयुग में भी ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे काम करते हैं। आप इतनी दुआएं देंगे, आप 5 लोगों को बताएंगे पता उसी से लेना, वो बहुत अच्छा था, बहुत ऑनेस्ट था। उस दिन उसने पैसे नहीं कमाए। उसके बाद आप हमेशा किसके पास जाएंगे? हर टाइम आप किसकी दुकान पे जाएंगे? उसकी दुकान पे जाएंगे। आप और 10 लोगों को कौन सी दुकान पे जाने के लिए बोलेंगे? उसके पास जाने के लिए। ये एक लॉ है। जो पैसे कमाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ये सर्टन है। पहले दुआएं कमाओ, पैसे अपने आप आ जाएंगे, अपने घर अपने आप आ जाएंगे। आज कलयुग में एक ही चीज़ लैकिंग है, इसलिए बहन ने बोला ना नहीं मिलेंगे ऐसे सब्जी वाले, नहीं मिलेगा ऐसा फल वाला। एवरीबडी वॉन्ट्स दैट ऑनेस्टी, दैट ऑथेंटिसिटी, दैट ट्रस्ट। इट इज़ सो लैकिंग। तो जिसके पास वो होगा वो अपने आप एक्सेल करेगा ही करेगा। लेकिन जो धन हम कमाते हैं उससे सामान आता है, जो दुआएं हम कमाते हैं उससे यहाँ की पावर आती है। तो कौन सी चीज़ कमानी चाहिए?
कौन सी चीज़ कमानी चाहिए? तो सो फर्स्ट ब्लेसिंग हैज़ टू कम इन द वे वी अर्न मनी। हमारा प्रोडक्ट लोगों को सुख देना चाहिए, हमारा वे ऑफ वर्किंग लोगों को सुख देना चाहिए, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको भी सुख मिलना चाहिए। और जब उस तरह से हम काम करते हैं तो वो पैसे को श्री लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। दैट इज वाई मनी इज कॉल्ड डिवाइन। तो वो पैसा हमारे घर दुआओं के साथ आता है। फिर उस धन से अन्न खरीदा जाता है, उस धन से अन्न खरीदा जाता है। इसीलिए किसी के पैसे में दर्द होना, उसके घर का अन्न नहीं खाना कभी। इसीलिए किसी के घर सोच के खाना खाना चाहिए। उनके घर में पैसा कैसे आता है पहले वो चेक करो। दूसरा, उनके घर में स्थिति कैसे है लोगों की, वो सारा अन्न के थ्रू आपके पास वाइब्रेशन आ जाएगा। तो धन से अन्न खरीदा जाता है, धन से आपके बच्चों की पढ़ाई खरीदी जाती है। एवरीथिंग इज हैपनिंग विद पावर ऑफ मनी। द मनी नीड्स टू बी द राइट वाइब्रेशन। दे उसमें कोई मिक्सचैरिटी नहीं। आज कलयुग क्यों बना? क्योंकि पीपल आर फोकसिंग ऑन हाउ मच वी अर्न। They ask each other, how much you earn? We should be focusing on how we earn. How much is important, but how we earn is more and more and more important. How much we earn will be left behind. वो बच्चों के पास जाएगा आपके। And how we earn, वो हमारा कर्म बनकर हमारे साथ आगे जाएगा। तो प्रायोरिटी कैसे पैसे कमाते हैं। दूसरा, अन्न, सात्विक अन्न खाएं। सात्विक अन्न मतलब वेजिटेरियन, शाकाहारी, वो भी कर्म बनता है। एनिमल इन अ स्लॉटर हाउस, कैसी वाइब्रेशन होगी? एनिमल इन अ स्लॉटर हाउस वाइब्रेशन कैसी होगी? क्या होता है उस एनिमल के साथ? देखा ना, रोड पे भी कभी कभी किसी के हाथ में ऐसे वो पकड़ के रख, ऐसे 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 वो जानवर पड़ रहा है, और हम कहते हैं ये टेस्टी है, ये हेल्थ है। किसी की डेथ किसी को हेल्थ नहीं दे सकती है। प्रोटीन दे सकती है, हेल्थ नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी फंडामेंटल एनर्जी डेथ है। एन एनिमल इन अ स्लॉटर हाउस, पेन, स्ट्रेस, हेट्रेड, फियर, वायलेंस एंड देन डेथ। इज दैट द वाइब्रेशन वी वांट टू पुट इनटू आवर स्टमक? डालना ही अपने अंदर। और वो सिर्फ पेट में नहीं जाता, वो मन पर असर करता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा, बोलिए, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम ऐसा दर्द वाला अन्न खाएंगे, और क्या वो कर्म अच्छा होगा कि हम अपने टेस्ट के लिए किसी को मार रहे हैं? ये कौन सा कर्म हुआ? वैल्यू ऑफ लाइफ ही नहीं है हमारे पास, दूसरे के लिए कंपैशन ही खत्म हो जाएगी। तो जैसा अन्न वैसा मन है। तो पहले शाकाहारी 3 महीने करके देखो। एनीबडी हु इज हैविंग अ नॉन वेजिटेरियन डाइट, जस्ट एक्सपेरिमेंट फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स तो रुकना भी नहीं पड़ेगा आपको, 1-2 महीने में ही रिजल्ट मिल जाएगा। आपका ये भी लाइटर फील करेगा, आपका ये भी लाइटर फील करेगा, क्योंकि स्टमक भी डिजाइन नहीं है उसके लिए। फिर दूसरी चीज, जहां तक हो सके घर का खाना खाओ। ये हर टाइम बाहर से खरीद के खाना भी इज नॉट द राइट वाइब्रेशन। आपको यही नहीं पता आपके लिए किसने बनाया। आज वो परेशान हो सकता है, आज वो नाराज हो सकता है, आज वो दुखी हो सकता है, हमने खाना खा लिया उसके हाथ का। आपको ये भी नहीं पता किस स्थिति में अंदर रेस्टोरेंट में खाना बन रहा होता है। जल्दी जल्दी बना रहे हैं, भाग रहे हैं, कटिंग कॉस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं। जो खाना हम खरीद के खाते हैं वो इस इंटेंशन से बनता है। जो आप घर में खाना बनाते हैं वो कौन सी इंटेंशन से बनता है? ऐसे। तो फंडामेंटल एनर्जी रॉन्ग है ना बाहर के खाने की। वी शुड कीप दैट ओनली फॉर एन इमरजेंसी। उसके अलावा दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंग एंड ईटिंग, सिटिंग एट होम, ऑर्डरिंग एंड ईटिंग, ये हमारी इमोशनल हेल्थ पर असर डाल रहा है, क्योंकि वो खाना इस एनर्जी से बना है। आप खाओ मैं कमाऊं। घर पे आप खाना बनाते हो तो आप बोलते हो मैं बनाऊं आप हेल्दी हो जाओ। दैट फंडामेंटल एनर्जीज ऑफ गिविंग। और दूसरी चीज, रसोई में, किचन में परमात्मा की याद के शब्द चलने चाहिए पूरे दिन। एनर्जाइज द फूड, सबके मन और तन हेल्दी होने लग जाएंगे। एनर्जाइज द फूड। रसोई में भजन चले, मंत्र चले, प्रवचन चले, लेकिन चले हाई एनर्जी वर्ड्स किचन में ज़रूर होने चाहिए, जैसे मंदिर में होते हैं। मंदिर में यही होता है ना, इसीलिए तो वो प्रसाद बन जाता है। बट हम कितना सा तो प्रसाद खाते हैं, इतना सा।
क्यों ना हम अपने घर में सब कुछ ही प्रसाद की तरह बनाएं, क्यों नहीं बन सकता? और फिर खाना बनाते बनाते उसमें शक्ति भरो। हर एक मेरे घर में शक्तिशाली है, हर एक का माइंड हैप्पी है, हर एक की बॉडी हेल्दी है, हमारी फैमिली यूनाइटेड है, परमात्मा हमारे साथ है, हमारा घर स्वर्ग है। घुमाओ करछी और देखो क्या जा रहा है उसके अंदर। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। रसोई से लोगों का, घरों का भाग्य चेंज होता है, रसोई से। थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम में एक कपल आए, वो माउंट आबू भी आए थे अप्रैल में। तो वो बहन ने कहा मेरे को इतना काम बढ़ गया था, मैंने सोचा मेरे से नहीं खाना बनाया जा सकता, मेरे पास टाइम नहीं खाना बनाने के लिए। तो देन शी हायर्ड समबडी खाना बनाने के लिए। कुछ ही दिनों में उनके घर में बहुत झगड़े शुरू होने लग गए आपस में दोनों के। 1-1.5 महीना चला झगड़ा झगड़ा, हर रोज झगड़ा झगड़ा, रीच्ड इट्स पीक। एंड देन दे रिमेम्बर्ड, हम माउंट आबू गए थे, हमने सीखा था कि खाना कैसे बनाया जा रहा है, दैट कैन चेंज आवर माइंड। शी आस्क्ड दैट पर्सन टू लीव, शी सेड आई गो बैक टू कुकिंग। एवरीथिंग चेंज्ड, एवरीथिंग चेंज्ड। वी सी दिस एवरी सिंगल डे। हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जिस स्थिति में हमारा खाना बनाया जाता है, उस स्थिति का हर एक का घर में मन और तन बन जाता है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। वैसे ही वो खाना जो आ रहा है, मतलब वो वेजिटेबल्स जो आ रहे हैं, वो एक प्रोसेस से आ रहे हैं। किसान की मन की स्थिति कैसी है, फार्मर, फिर मंडी में आया, वहाँ की शोर शराबा कैसे चल रहा है, फिर कौन सी दुकान से हम लेकर आए, फिर कम से कम हमने कैसे बनाया, तो उसको चेंज करो। तो इसलिए अब तो सिर्फ फैमिली के प्यार में खाना नहीं बनाना, परमात्मा की याद में खाना बनाना, तब वो शक्तिशाली बन जाएगा। क्योंकि फैमिली के प्यार में भी बनाते हैं ना, तो खाने में अटैचमेंट चली जाती है बहुत सारी। मेरा बच्चा खाएगा, मेरा बच्चा खाएगा, ऐसे वाला खाना नहीं बनाना। अटैचमेंट चली जाती है उसके अंदर। हमें भगवान की शक्ति भरनी है ताकि वो खाएगा और वो शक्तिशाली बन जाएगा। तो इसलिए जब आप राजयोग सीखने आएंगे ना, कल से आपको ये ज़रूर सिखाया जाएगा कि ये कैसे करना। दिस इज बिग बिग पावर, बिग पावर। दवाई खा रहे हैं, दवाई खाने से पहले भी 10 सेकंड रुको, उसको शक्ति दो। ये मेडिसिन मेरी हीलिंग के लिए है, ये मेरी बॉडी को परफेक्ट हेल्दी बना रही है। सिंपल सिंपल थॉट्स चेंजेस द कर्मा, वी क्रिएट वाइट वॉल्स। एंड फिर खाने के टाइम एक रूल बना लो घर पे, नो फोन, नो टीवी वाइल ईटिंग। वो सारे वर्ड्स चले जाते हैं खाने के अंदर। रुक के परमात्मा को याद करके, उस खाने में अच्छी शक्ति वाली वर्ड्स भर के अब खाना खाओ, विद हैप्पी कॉन्वर्सेशंस और साइलेंस। नो नेगेटिव कॉन्वर्सेशन वाइल ईटिंग। तो धन अच्छा आ गया, अन्न सात्विक बन गया। फिर मन के लिए रोज सुबह 15-20 मिनट दिन की शुरुआत परमात्मा के ज्ञान और मेडिटेशन से करनी है। और ये फ़ोन और टीवी से जो हम कंज्यूम करते रहते हैं, इसको थोड़ा, कंटेंट हमारे कर्मा तक जा रहा है, क्योंकि कंटेंट हमारी थॉट्स क्रिएट करता है, थॉट हमारे कर्मा में आ जाता है। और इसलिए आप देखो, जब से हमारे पास बहुत सारा कंटेंट आया, हमारी खुशी कम होती जा रही है। बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग कंटेंट ऑफ क्राइम, एंगर, वायलेंस, फियर, jealousy, all this content we are consuming in the name of entertainment. Entertainment तो हुआ नहीं, डेस्टिनी चेंज हो गई। तो बी वेरी केयरफुल, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो डेस्टिनी बना रहा है। ध्यान से कंज्यूम करना, ध्यान से कंज्यूम करना। और इसीलिए मन और तन को हेल्दी रखने के लिए हमें मेडिटेशन ज़रूर 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 सीखने चाहिए। 3 दिन के लिए 1 घंटा निकाल के, 3 days, only 1 hour आप सेंटर पर आकर मेडिटेशन सीखेंगे। क्योंकि मुझे वाइट बॉल फेंकनी है, ये नॉलेज तो आ गई, लेकिन जब सामने से सिचुएशन आती है तो वाइट बॉल फेंकने की ताकत भी चाहिए उस टाइम पर। सिर्फ नॉलेज से नहीं होता। गुस्सा नहीं करना, ये पता है, लेकिन गुस्सा उस टाइम आ जाता है क्योंकि ताकत नहीं है। सो नॉलेज मिली, अब हमें उसकी पावर को क्रिएट करना है। उसके लिए हमें मेडिटेशन सीखना है। आप सबको पता है आपके शहर में सेंटर का? एवरीबडी नोज द सेंटर ऑफ द सिटी। आपके कार्ड पे भी लिखा हुआ था। तो सबको पता है ना सेंटर का है? शिवालय नियर कौन सा हॉस्पिटल?
आप बोल दो जोर से। कल से 4th है, कल संडे, 4th, 5th, 6th, 4th, 5th, 6th 2 टाइम रखे हैं। मॉर्निंग 6:30 ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರೀಸ್ ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಲೋನಿ ಕ್ಯಾನಲ್, ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಯಾನಲ್, हॉस्पिटल। ಹೊಸಪೇಟೆ ಶಿವಾಲಯ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶಿಬಿರ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಇರುತ್ತೆ, 6:30 ಇಂದ 7:00. 4th, 5th, 6th संडे, मंडे, ट्यूसडे 2 टाइम रखे हैं। आप दोनों में से कोई एक टाइम चूज करेंगे। 6:30 to 7:30 इन द मॉर्निंग और 6:30 to 7:30 इन द इवनिंग। ठीक है, सुबह 6:30 से 7:30, शाम को 6:30 से 7:30, दोनों में से कोई भी एक टाइम चूज करके 3 दिन के लिए 1 घंटा आएंगे। और वो जो 1 आवर है वो बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट होगा, तो इसलिए टाइम पे आ जाना, .6:30 to .7:30। ठीक है, कौन कौन रेडी है 1 घंटा निकालने के लिए 3 दिन के लिए? बस इतना सा करो। फिर हमें हैप्पीनेस चाहिए नहीं, हम कौन से वाले बन जाएंगे? हैप्पीनेस देने वाले। और हमारे पास श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति नेचुरल आने लगेगी वाइट बॉल्स फिंगर, एंड दैट विल बी अ बिग गिफ्ट टू द फैमिली। फैमिली की पावर बढ़ जाती है। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। उनको लेकर आओ सामने माइंड पर, जिनके साथ के कार्मिक अकाउंट को चेंज करना है। अपने आप को देखें यहाँ इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, आत्मा, अजर अमर अविनाशी, आई एम इटर्नल, आई नेवर डाई। आज मैं आत्मा इस कॉस्ट्यूम में, इस शरीर में हूँ। पहले किसी और शरीर में थे और फिर किसी और में होंगे। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। हर कॉस्ट्यूम में अनेक लोगों से मिले, कर्म किए, कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गए। हमारे मेजॉरिटी कार्मिक अकाउंट बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ एक को आज चेंज करना है। लेकर आए उनको सामने, जिनके साथ के कार्मिक अकाउंट को चेंज करना है। वो मेरे साथ आज अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरा उनके साथ का पुराना कार्मिक अकाउंट है। इट्स माई पास्ट कार्मिक अकाउंट विद देम। सबसे पहले उनसे सॉरी कहें कि मुझे याद नहीं है, लेकिन कभी ना कभी मैंने आपको कोई दुख दिया था। मुझे याद नहीं, पुराना है, लेकिन उसके लिए मैं आपसे आज क्षमा मांगती हूँ। और आज आप जो मेरे साथ कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। आई फॉरगिव यू। पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। बीती हुई बात को खत्म करते हैं। आज से मैं अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को खत्म करती हूँ और आज से एक नया कार्मिक अकाउंट आपके साथ मैं आत्मा शुरू करती हूँ।
आज से मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स, दुआएं। आज से हर रोज हम उनको देखते हुए मन में सिर्फ एक थॉट क्रिएट करेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। देखो उनको और मन में उनको कहो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे कहते कहते पहले हम बहुत अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि हमारा कर्म राइट हो जाएगा। हमारी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगी और वो कार्मिक अकाउंट नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ सिंपल ब्लेसिंग, आप बहुत अच्छे हैं। जब हम ब्लैक बॉल फेंकते हैं, हम कहते हैं आप कैसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे कैसे करते हैं। फुल स्टॉप, आज से ऐसी बॉल नहीं फेंकनी है। आप बहुत अच्छे हैं, आपका हर कर्म राइट है, आपका और मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है। वी हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप। दिस इज ऑल टू बी डन इन द माइंड, इन द थॉट्स, एवरी सिंगल डे। आप बहुत अच्छे हैं, आपका हर कर्म बहुत अच्छा है, हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है। और ये वाइट बॉल्स बेचते बेचते हमारा कार्मिक अकाउंट चेंज हो जाएगा। आज से हमारा धन, पैसा दुआओं के साथ आएगा। हमारा अन्न, फूड भगवान की याद में बनेगा, शांति की स्थिति में बनेगा। अपने मन के लिए हम कल से मेडिटेशन सीखेंगे, और जब ये तीनों चीज़ें प्योर हो जाती हैं, बॉडी हेल्दी बननी शुरू हो जाती है। तो धन, अन्न, मन और तन भाग्य श्रेष्ठ, ऑलवेज हैप्पी। आज हम यहाँ से घर तक साइलेंस में चलेंगे, बिल्कुल मौन में, जैसे कोई है ही नहीं उस हॉल के अंदर, इस ग्राउंड के अंदर। बिल्कुल साइलेंस में फरिश्ते, एंजल्स कैसे चलते हैं, बस वैसे ही उठना है और चलते जाना है, लेकिन बिल्कुल साइलेंस में। सबसे आगे की 5 लाइनें उठेंगे।